इसी का पार्टी का एक नेता बोल रहे हैं एक भी बांग्लादेशी का नाम वोटर लिस्ट का बाहर नहीं रहना चाहिए। सर प्लीज कंटिन्यू। 64 लाख ऐसे वोटर का नाम पाए गए अब तक, जिसका पिता और पुत्र का एज का डिफरेंस है सिर्फ 15 ईयर्स। 12 राज्य में आज SIR हो रहे हैं और एक ही राज्य पश्चिम बंगाल में हंगामा हो रहा है। क्यों हो रहा है? सर बाप किराए में मिलता है पश्चिम बंगाल में। सर सिर्फ लैंड जिहाद नहीं सर, लैंड जिहाद, लाभ जिहाद कौन किसका वसा था? एक कॉइनेज किसने निकाला था? कोई बीजेपी नहीं, एक कम्युनिस्ट पार्टी का नेता ने। एक बार जाइए ना, मेहरबानी करें एक बार जाइए मुर्शिदाबाद में अधीर रंजन चौधरी का घर पर चाय पीजिए। अधीर रंजन चौधरी का स्टेटमेंट क्या है? बोले यह तो चोरी नहीं, बंगाल में तो वोट का डकैती होता है। ऑनरेबल श्री समीक भट्टाचार्य जी। ऑनरेबल श्री समीक भट्टाचार्य जी। थैंक यू सर। ईवीएम या बैलेट, कभी खुशी कभी गम, ये तो चलता ही रहेगा। सर मैं पश्चिम बंगाल से आता हूं। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली वी हैव अ border with Bangladesh which is more than 2200 kilometers. And basically I do believe it is not possible for any agency, any force to control illegal immigration unless and until there is a state government and central government joint operation, mass awareness and political consciousness. We cannot and will not stop this kind of illegal immigration. Sir, I want to quote some ज्योति बासु स्टेटमेंट। बासु जी बहुत बड़ा नेता हुआ करते थे। इन मिड 80s उन्होंने बोला था कि ये जो घुसपैठ का समस्या है, इट्स एन इंटरनेशनल फेनोमेनन। फ्रॉम वीकर इकोनॉमी टू स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी, पीपल टू कम। व्हाट वी कैन डू? एक मानविक मुख से इसका ऊपर चर्चा होना चाहिए। सर इंद्रजीत गुप्ता, CPI leader, Union Minister of Home Affairs, 1996 to 97, date 6th May 1997 on the floor of the Lok Sabha. He gave an estimation of the total number of illegal Bangladeshi immigrants across the India is over 1 crore. His specific figures for key border states. Give him a minute to speak. Give him a minute to speak. I'll come to your point of order. West Bengal 54 lakhs, Assam 44 lakhs. Sri Shivprakash Jaiswal, MOS Home Affairs under UPA government, date July 2004, admitted in the parliament that there were 1.2 crore illegal immigrants in India. Manmohan Singh, 30th September 2005, India is opposed to all illegal immigration. 1 second, they've been asking a point of order. Let me just take that and I'll come to you and I'll allow No, you to sir, take that. 1 minute, sir. Just 1 second, yeah. It is physically connected with for your electoral reforms. सर बाप किराए में मिलता है पश्चिम बंगाल में। 15 साल का आदमी 10 बच्चा का जन्म दे दिया। किसके ऊपर बात करेंगे? I'm pausing your time. We are compromising with our national security. Point of order. I'm just taking a point of order. धर्मशाला नहीं है, जिसका चाहे घुस जाएगा। Last point of order. Last point of order. 1 second. Point of order very quickly. Rule number. I'm on rule number. Please sit down. Point of order very quickly. I'm on rule number. Sir, ask him to stay quiet so that we can Rule read out. number, please. On Rule number 240, sir. 240, irrelevance. Irrelevance, sir. My limited submission Yes. here, sir, is Yes. that the debate is not about immigration, it's about electoral reform. Yes. This is not a platform to give an election He's speech. going to place it on record. This is not a place to give an election speech. Let him speak on electoral reform, sir. And please ask him to authenticate what he's saying, because this is not a Take your free-for-all, point. sir. Thank you. Now, Shamik ji, 2 points. Very quickly, 2 points. Sir, Shamik ji, 2 points. 2 points. One, you will place it on record for authentication on the floor. Yes, sir. One. Definitely.
Second is that whatever you're saying on illegal immigration, as you're talking about electoral reforms, you can relate to that as well. That's all. Please continue. It is totally related, sir, I do believe. Sir, Manmohan Singh, 30th September 2005. 2005. Yes. India is opposed to all illegal immigration into the country, be it from Bangladesh or elsewhere. The illegal immigration should not be encouraged. ये हमारा देश का प्रधानमंत्री बोल रहे हैं. Please. सर उस समय सर और एक घटना. Please, no cross. 2005. Please, no cross. Sir, 2005. Our honorable Chief Minister and then leader, Ms. Mamta Banerjee, threw the papers on the Deputy Speaker on Lok Sabha, Charanjit Singh Otwal, on 4th August 2005. कितना बारी ये लोग ममता बनर्जी का नाम लिया, रिकॉर्ड खोल के देख लीजिए, सारे एक्सपर्ट whatever will not be there will not be there. पे जो कागज छोड़ गया, क्या कहना था उस समय? Yes, please continue. जब पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट बांग्लादेश से भरे हुए हैं, कोई बांग्लादेशियों को लेकर सीपीआईएम को हम चुनाव करने नहीं देंगे. She was in tears by that time and she threw all the papers to the speaker desk. सारा देश ने तमाम देखा ये नजरिया क्या हुआ था. ममता जी ने जो किया उस समय we did express our solidarity with Miss Mamta Banerjee, जो करना चाहिए था. आज पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है? जो लोग जो ममता जी बोल रहे हैं वही बात हम बोल रहे हैं और वही बोल रहे हैं हम. 2005 in the year of 2005 on 4th August what Mamta Banerjee said, वही बात आज हम दोहरा रहे हैं. जो पश्चिम बंगाल से जो आप ये घुसपैठियों से मुक्त करो. जो लोग किसी समय इस देश छोड़ के चले गए थे, हंस के लिए पाकिस्तान लड़के लेंगे हिंदुस्तान, सिलेट नियची दोनों वोटे आसाम ने वो लाठी छोटे, वही लोग हिंदुस्तान में वापस आ रहे हैं. और हमारा पार्टी मतलब हमारा वी आर इन सेम फ्रेटर्निटी, हमारा ही पश्चिम बंगाल का एक नेता बोल रहे हैं. आफ्टर ऑल हम लोग सभी एक जगह से आ रहे हैं सर. इसी का पार्टी का एक नेता बोल रहे हैं एक भी बांग्लादेशी का नाम वोटर लिस्ट का बाहर नहीं रहना चाहिए. इट इज वेरी मच इन द पब्लिक डोमेन. Very much in the public domain. Address the chair. Sir, anything that is not authenticated will not go on record. I'm ruling it. Anything not authenticated will not go on record. Sir, please continue. 64 लाख ऐसे वोटर का नाम पाए गए अब तक, जिसका पिता और पुत्र का एज का डिफरेंस है सिर्फ 15 ईयर्स है. सर, इससे मुक्त होना चाहिए. ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इलेक्शन कमीशन. इट्स एन कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी. SIR is going on. You have to accept it. 12 राज्य में आज SIR हो रहे हैं और एक ही राज्य पश्चिम बंगाल में हंगामा हो रहा है. क्यों हो रहा है? सर, भाई बहन का शादी हो गया ये वोटर लिस्ट में, तो इसका तो सुधार होना चाहिए. क्यों इसका खिलाफ आवाज उठा रहे? सर, सिर्फ लैंड जिहाद नहीं सर, लैंड जिहाद, लाभ जिहाद कौन किसका वसा था? एक कॉइनेज किसने निकाला था? कोई बीजेपी नहीं, एक कम्युनिस्ट पार्टी का नेता ने. आज जो लोग यहां बात कर रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं अभी तिवारी जी बहुत दिग्गज नेता वहां बैठे हुए हैं, दिग्विजय सिंह जी का है. एक बार जाइए ना, मेहरबानी करें एक बार जाइए मुर्शिदाबाद में अधीर रंजन चौधरी का घर पर चाय पीजिए. अधीर रंजन चौधरी का स्टेटमेंट क्या है? बोले यह तो चोरी नहीं, बंगाल में तो वोट का डकैती होता है. ये तो हम नहीं बोल रहे, हम कांग्रेसियों का बात कर रहे हैं. आप लोग वहां जाइए, एक बार जाकर देख के आइए. जयराम जी कहां चले गए? हम तो जयराम जी के ढूंढ रहे हैं. हाईली ग्रेटफुल टू हिम. जयराम जी 2009 साल में इन द ईयर ऑफ 2009 जयराम जी ने इंडियन बोटेनिकल गार्डन का नाम आचार्य जगदीश चंद्र पोस्ट बोटेनिकल गार्डन रख दिया था. आभारी है पश्चिम बंगाल की जनता जयराम रमेश जी के पास. आज जयराम रमेश जी को बोली एक बार आप भी तो आइए देखने के लिए कि कैसे उसका भीतर घुसपैठिया घुस गया, मस्जिद बन गया, इलेक्ट्रिसिटी भी पहुंच गया. पब्लिक डोमेन में वो तस्वीर है.
पानी का कनेक्शन कौन दिया? हावड़ा कॉर्पोरेशन। कितने बार इंस्टीट्यूशन का लोग गए हैं थाने में, कोई एक्शन नहीं है। शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, जिसका साथ सीधा संबंध डीआरडीओ के साथ है, उस जगह रोहिंग्या बैठे हुआ है और उसका नाम वोटर लिस्ट से निकालना चाहिए। किसी भी हालत से रोहिंग्या को मुक्त करना चाहिए। बांग्लादेशी घुसपैठियों को छोड़कर वोटर लिस्ट में होना चाहिए। कोई आवाज उठाने का बात नहीं है। ये अब सैटेलाइट पिक्चर के लिए रामसर साइट, सुंदरबन एरिया, नामखाना, गोशाबा, पाथर प्रतिमा जा करके देख के आइए। वहां लोगों को बैठा कर ऐसे जमीन घेर रहे हैं, पूरा मैनग्रोव आज डिस्ट्रॉय हो गया वहां से। आज ये पर्यावरण का खिलाफ चूत छेड़ दिया। ये जो पार्टी आए हैं सब पश्चिम बंगाल की आम जनता नहीं, सिर्फ लोकतंत्र के खिलाफ नहीं, खुलेआम चुनाव आयोग के खिलाफ बयान दे रहे हैं, खुलेआम पत्रकार के खिलाफ बोल रहे हैं, दोलाजियात बात कर रहे हैं। 2 दिन पहले उन्होंने बोला भारत की सारे जो मीडिया है वो पीक गया है। इन लोगों से लोकतंत्र की बात ही सीखना पड़ेगा। इलेक्शन रिफॉर्म्स, उधर कम से कम वो जो सीपीआई का नेता, सीपीआई का भाई हमारा बैठे हुए हैं, उसका पार्टी का कार्यकर्ता को जिंदा जला दिया लास्ट चुनाव में। आज बात करके जॉन ब्रिटस का बात कहाँ गया? ब्रिटस भाई कहाँ गया? वो चले गया। हमारा कहना है पॉलिटिकल वायलेंस। You have 3.5 minutes. Please focus on election. एक समय था जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य जी वो पहले ये इंस्टेंट दे देते हैं। पश्चिम बंगाल में कुछ नहीं है। बिहार का चुनाव देख के आइए, उत्तर प्रदेश का चुनाव देख के आइए, और आज पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है? चुनाव पश्चिम बंगाल में चल रहा है 38. Yeah. Rule number 238, sir. 238. Procedure regarding allegations against members. Sir, the request here is for the last 14 minutes that he's been speaking. This is the second time I'm raising a point of order on a different rule altogether. So he's making unsubstantiated statements. He's making allegations against members. I'm giving the ruling. So you have the right to stop him and discontinue his speech, sir. Anything that is not authenticated will not go on record. Sir, you can ask him to discontinue his speech, sir. I will do that. Because this is an election speech he's giving here, sir. Okay. It's not related to the topic. Point of order. He's making vile allegations. I've taken your point. He's speaking untruths. He's lying, sir. I have taken your point. Please, sir. I have taken your point of order. I have taken your point of order. Sorry. 258. When a member is speaking deliberately, it's being disrupted multiple times, so it's no disrupted. So you should allow only once. The point of order should be allowed only once. Understood. Please continue, Mr. Bhattacharya. Please continue. सर समय देखिएगा, वो नहीं है। Sure. I'll give you time. देखिए, चुनाव आयोग ने एक प्रक्रिया चला रहे। कुछ लोग गए थे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने में, क्या सुप्रीम कोर्ट बोल दिया सबको जाना है। सर, हरियाणा चुनाव का पहले, दिल्ली चुनाव का पहले कौन सा एसआईआर था? बिहार में चुनाव का बाद कितना लोग कंप्लेन दर्ज किया? जो लोग वोट चोरी का बात करते हैं और जिसका साथ पार्टी में है, वो लोग वोट का ऊपर डाका डालते हैं, यही उसका स्थिति है। Sir, one of the senior member of the other house and then opposition leader, Mr. Adhir Ranjan Chaudhary, was physically manhandled in his own constituency during the election. यही स्थिति है पश्चिम बंगाल का। वोट की नाम पर क्या तमाशा चल रहा है? अरे आपका तो एक पिता का नाम मिल गया सर, एक नहीं, ऐसा हजारों केस है। 24 परगनास, एक व्यक्ति जिसका 10 संतान मुर्शिदाबाद में है। सोचिए, बाप रहते हैं, पिता रहते हैं आपका नॉर्थ 24 परगनास डिस्ट्रिक्ट में, और 10 बेटा रहते हैं मुर्शिदाबाद में, और 5 लड़की वो मोहल्ले में रह रहे हैं। इसको तो सुधार होना चाहिए। अगर इसके ऊपर बातें करने से बोलेगा, किसी को कोई जरूरत नहीं है, कोई भी एसआईआर नहीं करने देंगे पश्चिम बंगाल में। खुद फॉर्म भर लिया, पश्चिम बंगाल में एसआईआर करना संभव नहीं है। बीजेपी दंगाचार है। क्या एसआईआर बीजेपी कर रहे हैं? और आदर है, उसका एक नेता है, बहुत उसका तजुर्बा बहुत ज्यादा है। 6 बार का करीब उन्होंने संसद बना, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर भी था, 6 बार पार्टी भी बदल चुके हैं, तो अभी है एक पार्टी में।
उन्होंने उस दिन अच्छा बोला था, दादा को बाबू लेके ठीक किया था, लेकिन हुआ क्या? उसका कहना क्या था, जिसमें हल्ला का क्या बात है, इट्स अ कॉमन फिनोमेनन, एसआईआर को होता है, इसको होना नहीं दीजिए। और दूसरा लोग कुछ अलग बात बोल रहे हैं। सर, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को आप चैलेंज कैसे कर सकते हैं? आप खुद संविधान की शपथ लेकर एक पद पर बैठे हुए आदमी कैसे एक संविधान की संस्था को ऊपर चैलेंज करते हैं? ये हमारा बात है। साइलेंट डेमोग्राफिक इन्वेशन इन ऑन, प्लीज साइलेंट डेमोग्राफिक एक पश्चिम बंगाल का चल रहा है। पश्चिम बंगाल का सारे सीमावर्ती जिला का जनसंतुलन बिगड़ गया और वो वोटर लिस्ट में घुस गया। अरे आप बॉर्डर और सर, झारखंड का साथ बांग्लादेश का कोई बॉर्डर नहीं है। झारखंड का साथ बांग्लादेश का कोई बॉर्डर नहीं है। आज से बंगाल नहीं, झारखंड और बिहार, सीमांचल और वनांचल का भी डेमोग्राफी बदल रहे हैं। मुर्शिदाबाद को सेंटर बनाकर लोगों को भेजा जा रहा है आज झारखंड में। आज अब 2 मिनट चाहिए सर, ओनली सर 2 मिनट टू कंक्लूड। सर, किसी भी हालत से हम लोग तो यही चाहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर तो देखना तो राज्य की विषय है। चुनाव आयोग अपना काम कर रहे हैं और काम करते करते आप कोई बीएलओ का हस्बैंड को गोली मार देंगे, जो फॉल्स डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया तो इसको गोली मार देंगे। प्यार में धोखा खाकर कोई खुदकुशी कर लिया, आप उसका कारण एसआईआर बना देंगे। एसआईआर का नाम पर डेथ सर्टिफिकेट कभी सुना है आपने? जो भी मर रहे हैं अभी, चाहे वो सीकेडी में चला जाए, हार्ट अटैक में चला जाए, चाहे वो उसका कोई सेरिब्रल हो जाए, कुछ भी हो जाए, अगर अब बहुत दिन से कैंसर से पीड़ित है, मर जो गया तो डेथ सर्टिफिकेट पे डॉक्टर लिख देते एसआईआर। ऐसे चल सकते हैं? सर, ये हम सभी को इस बारे में सोचना चाहिए, सभी को इस बारे में सोचना चाहिए। आज मुर्शिदाबाद, मालदा, दिनाजपुर और वनांचल और सीमांचल का स्थिति क्या हो गया? आज इस कहां गए वो? सर, अभी बाला साहेब ठाकरे सामना पढ़ लीजिए। जब वी कैन नॉट एंड विल नॉट एक्सेप्ट दिस काइंड ऑफ साइलेंट डेमोग्राफिक इन्वेशन ऑन आवर कंट्री, ये बाला साहेब ठाकरे का कहना है। कांग्रेस का जितना नेता लोग वहां बैठे, उसका तो स्टेटमेंट हमने पढ़ दिया। ये कांग्रेस का स्टेटमेंट है, कांग्रेस का स्टेटमेंट है। को लेकर के चुनाव हम लोग बंगाल में करने नहीं देंगे। भारत कोई धर्मशाला नहीं है। भारत का ऊपर अधिकार है भारतीय का, भारत का ऊपर अधिकार है जो भारतीय मुसलमान है उसका। भारतीय मुसलमान का रोटी छीन रहे हैं। जाइए तमिलनाडु पे, नॉन बीजेपी रूल स्टेट, कितना बंगाली को हटाया गया, कारण वो बांग्लादेशी मुसलमान था। हम लोग जो देसी है उसका पास खड़े थे, जो उधर बैठकर सांप्रदायिकता का बातें कर रहे हैं। एक बार कोविड काल में देख लीजिए, ये त्रिपुर में आरएसएस कैंप पे सिर्फ हमारा कंस्टिट्यूएंसी से 1,500 मुसलमान 6 महीने तक था, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। प्रभात